Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School Kurali, District SS Nagar. Students, we are doing 6th chapter, that is molecular basis of inheritance. Today we are going to study the next topic, that is packaging of DNA, the chromatin, and very important topic, the central dogma. So let's study. Hello students, let's continue chapter 6, that is molecular basis of inheritance. In my previous lecture students, we studied about the structure of RNA and 3 different types of RNA. Today we are going to study 3 new topics, that is packaging of DNA, chromatin and central dogma. What do you mean by packaging of DNA students? So let's study. Okay, students, we have already done that the distance between the two nucleotides DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਨਸੀਕਿਊਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ ਪੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 0.34 ਨੈਨੋਮੀਟਰਸ ਔਰ 0.34 into 10 to the power minus 9 meters. And total number of base pairs which are present in the typical mammalian cell is 6.6 into 10 to the power 9 base pair. So if we want to calculate the length of the DNA double helix in a typical mammalian cell, what we will do, we will multiply these two things, that is the distance between the base pair and total number of base pairs. So here we are multiplying them. So 6.6 into 10 to the power 9 is multiplied with 0.34 into 10 to the power minus 9. So what we get 2.2 meters. So बच्चे DNA double helix the length कितना आ रहा है 2.2 मीटर. सो इन्ने ज़्यादा जुड़ी लेंथ है सो वो अकोमोडेट हो रही है इनसाइड द न्यूक्लियस और न्यूक्लियस की अगर तुसी डायमेंशन देखते हो स्टूडेंट्स इट इज़ 10 to the power minus 6 मीटर. सो ये किस तरह पॉसिबल है कि इन्ना लंबा DNA जो है वो एक स्मॉल साइज न्यूक्लियस के अंदर पैक हो गया और न्यूक्लियस इस तरह की बॉडी है जिसनों तुसी आम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नाल नहीं देख सकते. यू नीड एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व द न्यूक्लियस स्ट्रक्चर. सो such a small body is holding 2.2 मीटर लेंथ DNA in it. सो बच्चे DNA जो है वो एक बहुत ज़्यादा कॉइलिंग शो करता है, पैकेजिंग शो करता है और वो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो अकोमोडेट हो जाता है. लेट्स सी हाउ. Okay, why packaging is needed students? Just now I explained you that length of DNA is approximately 3 meters or it was 2.2 meter as we calculated. And it has to be packed inside the nucleus which is just few micrometer in diameter. So इस high order packaging जड़ी है वो required है. साढ़े कोल बहुत सारे orders ने packing दे जो आपा one by one study करांगे. First order, second order and third order of packaging. First order नू आपा जड़ी है कि एक structure आपा formation करांगे जिसनों आपा nucleosome कहने हैं. Second order which we have solenoid fibers and then you have third order of packing in which we study about scaffold loops. Okay, so first order of packing ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ that is nucleosomes. ਨਿਊਕਲੀਓਸੋਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਨਿਊਕਲੀਓਸੋਮਸ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੋ DNA ਹੈ ਉਹ ਐਸਿਡਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੈ. DNA प्रोटीन्स के नाल मिल के प्रोटीन्स के ऊपर रैप हो के एक बॉडी बना रहा है जिसनों आपां बोलते हैं न्यूक्लियोसोम. सो बच्चे लेट्स स्टडी इट. जो DNA है स्टूडेंट्स, DNA ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੇ ਹਿਸਟੋਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ ਆਰ ਰਿਚ ਇਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ. DNA ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਐਸਿਡਿਕ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੈ. ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਬੇਸਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ DNA ਐਂਡ ਹਿਸਟੋਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ. सो हिस्टोन प्रोटीन्स क्या ने स्टूडेंट्स? दे आर बेसिक इन नेचर. पर्टिकुलरली ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਸੀਨ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਹੈ ਐਂਡ ਆਰਜਿਨਿਨ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਨੇ. ਸੋ DNA ਐਂਡ ਹਿਸਟੋਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਡੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਕਲੀਓਸੋਮ. ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਨਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? इट इज़ मेड फ्रॉम द हिस्टोन प्रोटीन्स एंड उस तो बाद जड़ा DNA है DNA उसके अराउंड जो है वो रैप है.
ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਿਸਟੋਨ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਡੀਐਨਏ ਉਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਰੈਪਡ ਹੈ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਓਸੋਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟਸ ਸਟੱਡੀ ਇਟ ਅਗੇਨ। ओके स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोसोम की है, इट इज मेड फ्रॉम डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स. Histones, they are rich in lysine and arginine and they are carrying positive charge, and DNA is acidic in nature, ठीक है, and proteins they are basic in nature. So ਜਿਹੜਾ histones ਨੇ they are actually octamers ਨੇ, 8 units ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 8 units ਕਿਹੜੇ ਨੇ H2A, H2B, H3 and H4. These are the 4 unit और हर एक unit ਦੇ हर यूनिट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ईच 2 in number। तो H2A दो बारी हो गया, इसी तरह H2B, तो टोटल ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ऑक्टामर। सो ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਨਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਲ ਫਾਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੋਰ। ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਬਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਹਿਸਟੋਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜੋ ਰੈਡ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ DNA, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਰੈਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ठीक है। और डीएनए जो है एक ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਬਣਿਆ ਉਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਡੀਐਨਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 1.75 ਟਰਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੇ 2 ਟਰਨਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਟਰਨ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1.75 ਇੰਨਾ ਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਬਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਓਸੋਮ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਓਸੋਮ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨਿਊਕਲੀਓਸੋਮ ਆਪਸ 'ਚ ਲਿੰਕਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿੰਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕਰ ਡੀਐਨਏ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ठीक है। दिस इज नोन एज लिंकर डीएनए। सो डीएनए जो है वो रैप्ड है, कादे ते रैप्ड है ऑन द हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। सो ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 146 ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸ ਪੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕਰ ਡੀਐਨਏ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਦਿਸ ਪਾਰਟ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਬੱਚੇ 60 ਬੇਸ ਪੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਓਸੋਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਪਲੀਟ ਬਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਹੇਅਰ। ਸੋ ਨਿਊਕਲੀਓਸੋਮ ਕੋਲ 200 ਬੇਸ ਪੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 200 ਬੇਸ ਪੇਅਰ ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਈਚ, ਕਾਦੇ 2BA, H2A, H2B, H3 and H4। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ क्रोमैटिन है बीड्स ऑन द स्ट्रिंग अपीयरेंस ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਨੀਚੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਓਸੋਮ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕੋਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਔਕਟੇਮਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਹਿਸਟੋਨ ਔਕਟੋਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਰੈਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ DNA ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰੈਪਡ ਐਂਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਰੈਪਡ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਹਿਸਟੋਨ। 1.75 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ H1 ਹਿਸਟੋਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਹ DNA ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਔਕਟਾਮਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਸਟ DNA ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਟੈਚਡ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਡਾਇਗਰਾਮ। सी दिस इज़ वेरी क्लीयर बच्चे, ये थोनों 8 ऑक्टामर दिख रहा है। ऑक्टामर जो कि हिस्टोन्स तो बनया है। सो इसके जिहड़े हैगे 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स ने। सो ये ऑक्टामर के अराउंड जिहड़ा कॉइल्ड स्ट्रक्चर तुहानूं नज़र आ रहा है ये DNA है और ये जिहड़ी बॉडी बनी है इसनूं असीं न्यूक्लियोसोम कहने हाँ। एक दूसरे दे नाल जुड़िया है विद द हेल्प ऑफ लिंकर DNA, ठीक है। और इसका जो डायामीटर है बच्चे दैट इज 10 नैनोमीटर्स। नाउ नेक्स्ट, सो दिस वाज द फर्स्ट लेवल ऑफ पैकिंग। आई होप थोनों फर्स्ट लेवल ऑफ पैकिंग जो है वो समझ आ गया होएगा। इत्थे बच्चे मैं थोनों एक होर वर्ड दसना सी, जिहड़ा न्यूक्लियोसोम है जो लिंकर DNA दे नाल अटैच हो जाता है तो उसनूं असीं क्रोमैटोसोम बोलते हैं, दैट इज नोन एज क्रोमैटोसोम। सो इट इज नोन एज क्रोमैटो SOME chromatozoa, right? Now we come to the second level of packaging। second level of packaging ता हुन DNA ने सब तो पहला DNA बच्चे की होया DNA coil हो गया, coil होके जेड़ा है वो इकट्ठा हो गया, उसकी पैकेजिंग होनी शुरू हो गई। सो फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग जो सीगा दैट वाज द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम। सैकेंड लैवल ऑफ पैकेजिंग ते आपां सोलेनॉइड एक स्ट्रक्चर बनावांगे। सोलेनॉइड जिहड़ा हैगा वो सैकेंड लैवल ऑफ पैकेजिंग है। इट वाज प्रपोज्ड बाय फिंच एंड क्लर्क। 6 न्यूक्लियोसोम टुगेदर, हुण की है 6 न्यूक्लियोसोम जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। 6 न्यूक्लियोसोम्स जो ने वो इकट्ठे हो जाएंगे और 6 न्यूक्लियोसोम्स इकट्ठे होके होर टाइट पैक हो जाएंगे और उन्हां दी जिहड़ी डायामीटर है स्टूडेंट्स वो हुण 30 नैनोमीटर्स हो जाएगा,
ठीक है। डायोमीटर्स उन्होंने इंक्रीज हो गए बिकॉज होर टाइट पैक हो गए। सो उससे वो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें असी सोलिनॉइड बोलांगे। सो इदा जो H1 हिस्टोन है वो इस स्ट्रक्चर को की करेगा, स्टेबिलाइज करेगा, राइट। ओके, देन यू हैव थर्ड और फाइनल लैवल ऑफ पैकेजिंग आएगी जिन्हों असी स्कैफोल्ड कहने आ, इनू असी सुपर सोलिनॉइड भी कहने आ बिकॉज इत्थे ये फाइनल लैवल ऑफ पैकेजिंग होंगी है। DNA की जो हुण थिकनेस होनी शुरू होगी, स्ट्रक्चर जो है वो थिक हो गया, ठीक है। सो हुण अगे फर्दर जो स्ट्रक्चर आएगा वो हो जो सोलिनॉइड बनिया तो 30 नैनोमीटर थिकनेस होगी, उस तो बाद होर फर्दर लूपिंग होंदी जाएगी, होर वो थिक होंदा रहेगा और अप्रॉक्सीमेटली 300 नैनोमीटर तक जी है वो थिकनेस हो जाती है। सो अगेन दे आर फॉर्मिंग लूप्स, अगेन एंड अगेन लूप्स पाते रहेंगे। सो सुपर सोलिनॉइड जो होंदा है फाइनल लैवल ऑफ पैकेजिंग होंदा है। इट इज़ करैक्टराइज्ड बाय 700 नैनोमीटर स्ट्रक्चर। 700 नैनोमीटर स्ट्रक्चर जो साडे क्रोमैटिड्स बन जाते हैं उस तो बाद जिहड़े अपना फर्दर होर इन्ने ज़्यादा थिक हो जाते हैं कि इन्हां दी थिकनेस जो है वो 700 नैनोमीटर हो जाती है और जिहड़े इन्हूं असीं मैटाफेज स्टेज ते देख सकते हैं और क्रोमोसोम्स जिहड़े बन गए उन्होंने हुण असीं सुपर सोलिनॉइड स्ट्रक्चर कहने बिकॉज जो थिक हो गए तो क्रोमोसोम्स बन गए और क्रोमोसोम्स की थिकनेस जो आप मैटाफेज स्टडी करते हैं सैल डिवीजन का, तो क्रोमोसोम्स बहुत थिकस्ट बॉडीज होंगे ने, शॉर्ट होंगे हैं, डार्कली स्टेन्ड होंगे हैं और थिक होंगे हैं। आप ईजीली मैटाफेज प्लेट के क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जी स्टेज है इसनूं असीं सुपर सोलिनॉइड स्टेज कहने हाँ। ये क्यों किवें हो रही है? एज द रिजल्ट ऑफ एक्सटेंसिव लूपिंग, जो लूप बनते जा रहे हैं और उसके नाल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा की हो रहा है, कंडेंस हो रहा है। ओके, सो बच्चे तुसीं इत्थे हुण इस डायग्राम दे विच देख रहे हो आपां DNA तो शुरू किया सीगा। DNA दे नाल DNA हिस्टोन्स दे नाल एसोशिएट करेगा और बीड लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, दे आर नोन एज न्यूक्लियोसोम्स। न्यूक्लियोसोम फर्दर होर क्वाइलिंग होंदी जा रही है तो अपने को सोलिनॉइड बनया, उस तो बाद सुपर क्वाइल्स बन गए, थिकनेस होर इंक्रीज हो गई 330 अगे 30 तो बाद फिर 300 नैनोमीटर होगी। दैन साढ़े को क्रोमोसोम्स बन गए और क्रोमोसोम्स जो है तकरीबन 700 नैनोमीटर जी है वो कंडेंस हो जाएंगे और थिक बॉडीज नज़र आएंगे एट द मेटाफेज स्टेज। ओके, सो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं बच्चे पैकेजिंग दियाँ। सो फर्स्ट स्टेज जो है उन थोड़ा क्लीयर हो जाएगी। फर्स्ट स्टेज सब तो पहला DNA, दैन DNA हिस्टोन्स ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन है वो DNA रैप हो गया, दैन न्यूक्लियोसोम बन गया। न्यूक्लियोसोम के नाल लिंकर DNAs दिख रहे हैं बच्चे, दीज आर लिंकर DNAs एंड जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन यू कि जो लिंकर DNA एंड जो अपना न्यूक्लियोसोम है ते आपस जो लिंक होंगे हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उन्होंने असीं कहने हैं क्रोमैटोजोम। सो दिस इज़ क्रोमैटोजोम जिहड़ा हैगा एक किहदे नाल बनिया है तुहाडा न्यूक्लियोसोम और लिंकर DNA दे नाल मिल के बनता है। दैन उस तो बाद होर फर्दर थिकनिंग होगी, सोलिनॉइड बन गया, होर लूपिंग जिहड़े ने वो कंडेंस हो रहे एंड दैन फाइनली क्रोमैटिन जिहड़े हुंदे आ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं सानू इंटरफेस से एंड दैन मेटाफेज से बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन हो गया, बहुत ज़्यादा डेंस लूपिंग हो गया और जिहड़े क्रोमोसोम्स ने वो सानू थिक स्ट्रक्चर्स की तरह नज़र आते। ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप थानू पैकेजिंग ऑफ DNA समझ आ गया कि किस तरह DNA इन्ना सुपर क्वाइल होके इन्ना लॉन्ग DNA जो आप देखा कि अप्रॉक्सीमेटली 2.2 या 2.3 मीटर लॉन्ग है और न्यूक्लियस के अंदर पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाता है, अकोमोडेट हो जाता है। नाउ आवर सेकेंड टॉपिक इज क्रोमैटिन। What is chromatin? Chromatin की है बच्चे एक darkly stained network है of long and fine threads. They are called chromatin fibers, which is suspended in the nucleoplasm of the interphase. जो interphase होता है तो chromatin ਆਪਾਂ nucleus ਦੇ ਵਿੱਚ देखा सी कि this is the nucleus, जिਵੇਂ cell ਦੇ अंदर cytoplasm है, inside the nucleus we have nucleoplasm और nucleoplasm ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ thread like meshwork है, network है, that is known as chromatin. So chromatins कितने present हैं? They are present in the nucleoplasm. And this chromatin, it was reported by Fleming, W. Fleming. Now this chromatin, there are two types of chromatin, students. First is known as euchromatin and second is known as heterochromatin.
Euchromatin is the true chromatin and heterochromatin is inactive form of the chromatin because it is very condensed. DNA is very condensed in this part of chromatin, so it is inactive. अगर if we see the role transcriptional role देखिए अगर आप तो it is inactive. but जेड़ा euchromatin है ये actually true chromatin है और actually ये बहुत ज़्यादा transcriptionally active होता है. now ਜਿਹੜਾ ਹੈਟਰੋਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ. one is known as facultative heterochromatiN and other is known as constitutive heterochromatiN. ਜਿਹੜੀ facultative heterochromatiN ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਹੈਟਰੋਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੈ. ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਸੈਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 X ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ. ਸੋ ਦੋਨੋਂ X ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ X ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਨਐਕਟਿਵ ਜੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ठीक है. आउट ऑफ द 2 सेक्स क्रोमोसोम्स 1 X क्रोमोसोम जो है वो हेट्रोक्रोमैटिक है और इसनों असी बोलते हैं बार बॉडी. दिस इज नोन एज बार बॉडी. सो ये जो अपना आप एमनियोसेंटेसिस किया सी उदों में थोनों मैं इसके बारे एक्सप्लेन किया सी. सो ये बार बॉडी है स्टूडेंट्स. सो बार बॉडी जी है एक किसका एग्जाम्पल है, फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन का एग्जाम्पल है. सेकेंड टाइप का जो हेट्रोक्रोमैटिन है दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन. एक परमानेंटली इनएक्टिव क्रोमैटिन है, पार्टिसिपेट नहीं करती और ज़्यादातर सेंट्रोमियर जो आप क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखा सी. सो दिस इज द सेंट्रोमियर. सो जो सेंट्रोमियर पार्ट है उसके नेड़े होंगी है और ये बहुत ही ज़्यादा कंडेंस्ड होंगी है और इनएक्टिव होंगी है, राइट. नेक्स्ट, so again we have 2 types of chromatin. One is euchromatin and second is heterochromatin. euchromatin is less condensed. अगर आप chromatin ਨੂੰ देखते हैं तो ये less condensed है, फिर heterochromatin बहुत ज़्यादा condensed है, and then we have euchromatin and again we have condensed form of chromatin and euchromatin again condensed. So ਜਿਹੜੀ less condensed है that is euchromatin और ਜਿਹੜੀ बहुत ज़्यादा condensed है that is heterochromatin. सो यूक्रोमैटिन जो है स्टूडेंट्स एक ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, पार्टिसिपेट करेगी. ट्रू क्रोमैटिन है और एक्टिव क्रोमैटिन है और द रीजन वेयर 13 NM फाइबर फॉर्म्स द रेडियल लूप डोमेन्स. स्टूडेंट्स इस लाइन में तुसी छोड़ दो, कोई गल नहीं, तुसी मेन इस पॉइंट करो कि जी हेट्रोक्रोमैटिन है ये बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैगी है और ट्रांसक्रिप्शनली ये इनएक्टिव है. सो इसका आप डायग्राम देखांगे, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ क्लीयर हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स ये ਜਿਹੜਾ पोर्शन है ये यूक्रोमैटिन है. ਤੁਸੀਂ ईजिली देखो कि बहुत ज़्यादा ਸਕੈਟਰਡ है, कंडेंस्ड नहीं है और ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ क्रोमैटिन है ਇੱਥੇ बहुत नेड़े नेड़े यूनिट्स ने, DNA बहुत ज़्यादा टाइटली कोइल्ड है. सो ये ਜਿਹੜੀ क्रोमैटिन है ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव क्रोमैटिन है. सो दिस इज यूक्रोमैटिन and this is heterochromatiN. Now let's study few differences between the euchromatin and heterochromatiN and you can, it's important question students. Euchromatin जो है it is narrow, it is 10 to 30 nanometer in diameters, whereas heterochromatiN thicker है. See, it is 100 nanometer or even more, right. इट इज़ लाइटली स्टेन. जो आप इन्हों स्टेन करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफ्यूज्ड हैगी है, कंडेंस्ड नहीं हैगी, तो लाइट स्टेन लेंदी है. वेरस हेट्रोक्रोमैटिन बहुत डार्क स्टेन लेंदी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड है, कंडेंस्ड है, लूप्स बहुत नेड़े नेड़े हैं. तो जो आप इन्हों स्टेन करते हैं तो सानू डार्क नज़र आता है, राइट. सो ये डिफ्यूज्ड है, ये कंजर्वड है. ये मोर एक्टिव, ये जो जीन्स ने मैं हुणे तुहानू दस्सिया ट्रांसक्रिप्शनली यूक्रोमैटिन इज़ वेरी एक्टिव बिकॉज इट इज़ द ट्रू क्रोमैटिन. ठीक है. सो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है और ये कोल फ्यू जीन्स ने और ये लेस एक्टिव है and it takes parts in the transcription. What is transcription? That is the formation of messenger RNA from the DNA. So it does not take parts in the transcription. So nucleosome strand has minimum coiling and here it has solenoid type of coiling. So they are the main differences and one more difference is euchromatin जो है वो early replicating होती है जबकि जो heterochromatin है वो बहुत late replicating होती है. सो जी क्रोमैटिन है बच्चे फर्दर जो क्रोमैटिन जो कंडेंस करती है बाय होर जगह के स्पायरल्स बन जाते हैं और डिहाइड्रेशन हो जाती है तो अल्टीमेटली क्रोमैटिन जो है वो साडे रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है एंड दीज रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स दे आर नोन एज क्रोमोसोम्स.
ठीक है। ਨਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ DNA ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਰੀਅਸ ਸਟੇਜਿਸ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਜਦੋਂ ਕੰਡੈਂਸ ਹੋਏਗੀ, ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਸਪਾਇਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰॉड ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ, ਐਂਡ these rod like structures they are known as chromosomes, right? Okay. So you can see it is very clear in the diagram. So this is one chromosome which is showing you different types of chromatins. ਜਿਹੜਾ heterochromatin ਹੈ ਬੱਚੇ, ਉਹ centromere ਜਿਹੜਾ white portion ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, centromere ਦੇ ਨੀਚੇ ਨੇੜੇ around ਜਿਹੜਾ portion ਹੈ ਇੱਥੇ heterochromatin ਹੈ। ਜਿਹੜੇ telomeres ਜਿਹੜੇ end ਨੇ chromosomes ਦੇ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ heterochromatin ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ central portion ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ brown color ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, euchromatin। So I hope students ਤੁਹਾਨੂੰ chromatin ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। Okay, next we come to a very important topic students, and this is known as central dogma। ਸੈਂਟਰਲ ਡੋਗਮਾ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਡੋਗਮਾ, ठीक है। सेंट्रल डोगमा जो है द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, इट इन्वॉल्व्स सेंट्रल डोगमा या वन ऑफ द सेंट्रल डोगमा ऑफ द मॉलिकुलर बायोलॉजी। सो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਡੋਗਮਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਲੋ ਆਫ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਨਿਊਕਲਿਕ, wait students, flow of genetic information is from nucleic acid to proteins. This is central dogma. So central dogma ये बोलता है कि flow of information takes place from DNA to RNA, ठीक है, and from RNA to proteins, right? सो इसनों आपां किद्दां इलस्ट्रेट किया, जिहड़ा DNA है बच्चे, सब तो पहला DNA रैप्लीकेट करता है। DNA रैप्लीकेशन का मीनस की है, DNA रैप्लीकेट करेगा, अपनी कॉपीज़ बनाएगा। सो DNA न्यूक्लियस के अंदर है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन किया सी RNA के स्ट्रक्चर के विच कि DNA को DNA एक स्टोर हाउस है। DNA अपनी इनफॉर्मेशन किसनों दिंदा है, मैसेंजर RNA नूं दिंदा है, और मैसेंजर RNA कित्थे बनता है, इनसाइड द न्यूक्लियस। मैसेंजर RNA वो इनफॉर्मेशन लैके न्यूक्लियस तो बाहर आ जाता है इन द साइटोप्लाज्म वेयर द प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस। सो जो DNA तो RNA की फॉर्मेशन होती है, DNA अपनी इनफॉर्मेशन जो RNA नूं दे रहा है, इस प्रोसेस नूं असीं बोलते हाँ ट्रांसक्रिप्शन, राइट। और जो RNA जो है वो अगे अपनी इनफॉर्मेशन ट्रांसलेट कर रहा है, प्रोटीन फॉर्मेशन बना होने हेल्प कर रहा है। सो RNA जो प्रोटीन्स बनाएगा, जो इनफॉर्मेशन RNA को है उसको वो ट्रांसलेट कर देगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन, राइट। सो दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डोगमा, दैट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन is always from DNA to RNA. RNA means which RNA students? Messenger RNA, right? Messenger RNA. And from messenger RNA to proteins, ठीक है। सो फ्रॉम DNA to RNA and from RNA to proteins, because जो RNA to proteins आप बोलना है उदों साडे होर भी RNAs इन्वॉल्व होंगे, ट्रांसफर RNA है, राइबोसोमल RNA, राइट। So gene is expressed in two steps, DNA is transcribed to RNA and RNA is translated into the proteins, right? ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप आई एक्सप्लेन यू कि फर्स्ट ऑफ ऑल DNA की करेगा, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, DNA अनवाइंड होएगा। सो DNA एक डबल स्ट्रैंड है DNA दे, सो DNA पहला खुल जाएगा, राइट, अनवाइंड होएगा और इस दे नाल एक नवा DNA जो है वो बन जाएगा। ਆਪਾਂ ਰੈਪਲੀकेशन ਹੁਣੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ग्रीन वाला है वो DNA ਦਾ ਕਾਪੀ ਬਣ ਰਹੀ है। सो डबल हेलिक्स ਜਿਹੜਾ स्ट्रैंड है वो खुल जाएगा और न्यू स्ट्रैंड जो है ਉਹਦੇ ਨਾਲ बन जाएगा। दिस इज नोन एज द रेप्लीकेशन ऑफ DNA फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी कॉपी बनाएगा। नैक्सट सेंट्रल डोगमा का स्टैप की सीगा, DNA तो RNA बनेगा। DNA तो RNA जो बनता है उस प्रोसेस को असीं बोलते हाँ ट्रांसक्रिप्शन। सो ये साडा डबल स्ट्रैंडेड DNA है, उसका पोर्शन खुल गया और DNA टैंपलेट जिहड़ी है उस दे नाल जिहड़ा रेड वाला है वो की बन रहा है, मैसेंजर RNA बन रहा है। सो जो DNA तो मैसेंजर RNA की फॉर्मेशन हो रही है तो इस स्टैप को आपां बोलना है ट्रांसक्रिप्शन।
ओके नेक्स्ट इज ट्रांसलेशन सो सेंट्रल डोगमा ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ दिस इज डीएनए ਤੋਂ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਰਐਨਏ ਬਣਿਆ दैट इज ट्रांसक्रिप्शन आरएनएस ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਟੂ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 4 ਲੈਟਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਕਿਹੜੇ 4 ਲੈਟਰਸ ਨੇ इट इज एडेनिन थायमिन साइटोसिन एंड गुआनिन ठीक है और आरएनए को यूरेसिल है लेकिन प्रोटीन्स जो हैं दे हैव 20 लेटर्स लैंग्वेज है बाबा शॉर्टली जो आप आगे नेक्स्ट प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यू करांगे दैन थोड़ा समझ आएगा ओके सो बच्चे एक बहुत इंटरेस्टिंग डायग्राम में लिया थोड़ा सेंट्रल डोगमा क्लियर करने वास्ते यू हैव डीएनए तो आरएनए बन रहा है प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन आरएनए तो प्रोटीन्स बन रहे हैं दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन एंड दिस इज नोन एज सेंट्रल डोगमा सो दिस इज अ सेल इनसाइड द सेल दिस इज द न्यूक्लियस के अंदर डीएनए तो मैसेंजर आरएनए बनया मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियर पोर्ट्स तो बाहर आ गया एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म इन द साइटोप्लाज्म प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है and protein formation is there so this is known as central dogma next okay students there are some incidences where central dogma jehड़ा हैगा हमेशा true नहीं ਹੁੰਦਾ कुछ इदां दे एक्सेप्शनस ने इदां दे केसेस ने ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਵਰਸ ਸੈਂਟਰਲ ਡੋਗਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ ਬੱਚੇ ਟੈਮਿਨ ਐਂਡ ਬੈਲਟੀਮੋਰ ठीक है स्टैमिन and D. Baltimore, Tamin and D. Baltimore, M-O-R-E, Tamin and D. Baltimore ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਆਫ DNA ਔਨ RNA ਟੈਂਪਲੇਟ तो उन्होंने देखा कि कुछ यह जे वायरसेस ने जिदे कि जेनेटिक मटीरियल RNA है दे आर कॉल्ड रेट्रोवायरस जो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि देर इज फॉर्मेशन ऑफ DNA फ्रॉम RNA ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਡੋਗਮਾ 'ਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ DNA RNA ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਰੈਟਰੋਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੈਟਰੋਵਾਇਰਸ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ RNA ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨਟੂ DNA RNA ਤੋਂ DNA ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ with the help of very special enzyme that is known as reverse transcriptase ट्रांसक्रिप्शन की सी DNA to RNA this is ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स हो गया उल्टा हो गया वी आर गेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ DNA फ्रॉम RNA राइट सो फिर अगे फिर DNA अपना RNA बना के प्रोटीन बनाएगा लेकिन ये जोड़ा स्टैप है इसनों असी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी बोलते हाँ एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल डोगमा रिवर्स दैट इज वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ DNA फ्रॉम द RNA सो ये बच्चे सिचुएशन रेट्रोवायरस के विच हुंदा है जिवें रेट्रोवायरस है ये वायरस का जिहड़ा जेनेटिक मटीरियल है वो RNA है सो जो वायरस जो है और अटैक कर रहा है बैक्टीरियल सैल नूं या किसी होस्ट सैल आपां बनाया सो जो वायरस अटैक करेगा तो की होएगा बच्चे वायरस का जिहड़ा RNA है वो अंदर चला गया वायरस का RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके की बना रहा है DNA की फॉर्मेशन कर रहा है ठीक है ये वायरस है वायरस ने अपना RNA रिलीज किया वायरस का RNA विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ DNA सो दिस इज द DNA हेयर और ये DNA जिहड़ा है होस्ट के DNA दे नाल इंटीग्रेट करता है फिर नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन हुंदी है ट्रांसलेशन हुंदी है और प्रोटीन्स बनते हैं ठीक है सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल डोगमा रिवर्स और यू कैन ऑल्सो से दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन So that's all students. Thank you so much for watching today's lecture. I hope साडे आज दे तीनों topics थानू packaging of DNA, chromatin and central dogma थानू बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे. Thank you so much students for watching.